Good morning, fifth class. Good morning, fifth class. So today we are going to start with a new chapter of your EVS book, and the chapter's name is Fetching Water. So this chapter is about water. As we all know that water is very essential for our living. If we'll not drink water, then we'll not be able to survive. Every living being on this earth need water. Aquatic animals, they live in water. We human beings, we need water. Birds, animals, they need water. Plants also need water. So water is essential for our life. People can survive on earth because earth has water. The planets which don't have water, no one can survive on those planets. So in this chapter we are going to study about how in earlier times people used to get water, and how nowadays we are getting water in our houses. What are the various community services which are there to provide water, and different ways which were used in the early times to lift water from the ground, and now what methods we are using, and the various sources for irrigation. And we all know what irrigation is. Irrigation का मतलब होता है जब हम अपनी crops को खेतों में पानी देते हैं तो उसको बोलते हैं irrigation. So this chapter is about fetching water. Now what is fetching water? Fetch का मतलब क्या होता है? Fetch का मतलब होता है किस चीज़ को लेके आना. You all must have heard the poem Jack and Jill went up the hill to fetch a pail of water. Fetch मतलब किस चीज़ को लेके आना, fetch करना, किस चीज़ को उठा के लेके आना. तो this chapter is about fetching water. How do we get our water? So let's start with the chapter now. Water is our basic necessity. Without water we cannot imagine our lives. So without water we cannot live. No living organism can survive without water. We use water for drinking, cleaning, bathing, washing and cooling. So everyone needs water. कोई भी इस अर्थ पे बिना वाटर के नहीं रह सकता. Every living organism, जो जिस चीज़ के अंदर भी लाइफ है उसको पानी चाहिए सर्वाइव करने के लिए. And we use water for different kind of things. We use water for drinking, for cleaning things, for bathing, नहाने के लिए यूज़ करते हैं, for washing and for cooling, ठंडक के लिए हम पानी को यूज़ करते हैं. Now, how do we get water in our homes? Yes, we get water from water supply of the municipal corporation. तो आज की डेट में आपके घर में पानी कैसे आता है? सप्लाई का वाटर आता है ना, वहीं से सप्लाई का वाटर आ रहा है. कहाँ से आता है? म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के थ्रू हमारे पास पानी आता है. राइट, हमारे यहाँ पाइप्स नीचे ज़मीन के अंदर पाइप्स लगे हुए हैं, उन पाइप्स के थ्रू हमारे यहाँ वाटर आता है. गंगा वाटर आता है मोस्टली बहुत जगह. ठीक है, तो वाटर कहाँ से आता है? बेसिकली रिवर्स वगैरह में से आता है. हाउ डिड आवर ग्रैंड पेरेंट्स गेट वाटर? Was there any such supply of water during their time? Ask them. अब आप ये पता लगाओ कि आपके ग्रैंड पेरेंट्स के टाइम पे पानी कैसे आता था. अभी तो हमारे यहाँ पाइप्स लगे हुए हैं और पाइप से ऑटोमेटिक पानी आ जाता है. राइट, हमें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती. पानी हमारे घर में टैप्स के थ्रू आ जाता है. म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन गवर्नमेंट्स जो है वो सप्लाई करती हैं वाटर को. लेकिन अपने ग्रैंड पेरेंट्स से पूछना कि उनके ज़माने में पानी कैसे आता था. हाउ दे यूज टू गेट वाटर इन देयर टाइम्स. यू विल गेट आंसर इन नो, कि उनके पास ऐसे पाइप में पानी घर के अंदर नहीं आता था. दे यूज टू गो एट लॉन्ग डिस्टेंसेज एंड गेट वाटर फ्रॉम देयर. दे हैड टू फेच वाटर फ्रॉम लॉन्ग डिस्टेंसेज. उनको बहुत दूर जाके जो है पानी लेके आना पड़ता था. सम वेल ऑफ पीपल हैड वेल्स इन देयर हाउसेज और दे हैड hand pumps, but in some areas hand pumps were not possible, so they had to travel kilometers of distance to bring water home. तो उनके टाइम में पानी ऐसे घर में नहीं आता था जैसे आज हमारे घर में आता है. दे यूज टू गो टू डिफरेंट प्लेसेस टू गेट वाटर. रिवर्स पे से पानी भर के लाते थे, या फिर गांव के अंदर कहीं कुआं लगा होता था वहां से पानी भर के लाते थे. जिनके पास बहुत पैसा होता था वो अपने घर में कुआं बनवा लेते थे और ग्राउंड वाटर को यूज करते थे. नहीं तो दे यूज टू गो टू डिफरेंट प्लेसेस एंड गेट वाटर फ्रॉम देयर. किसी के यहाँ हैंड पंप्स लगे होते थे, लेकिन सिर्फ उनके यहाँ जिनके पास पैसा बहुत होता था, सो दैट दे कैन अफोर्ड दोज हैंड पंप्स एंड वेल्स. राइट, क्योंकि वेल खोदना और हैंड पंप लगाना उस टाइम पे बहुत ज़्यादा महंगा काम होता था. और कुछ एरियाज़ में हैंड पंप्स पॉसिबल ही नहीं होते थे क्योंकि वहाँ पे ग्राउंड वाटर नहीं होता था. जैसे कि राजस्थान के बहुत ज़्यादा इलाके हैं, महाराष्ट्र में बहुत ज़्यादा एरियाज़ हैं जहाँ पे पानी नहीं होता है, जहाँ पानी की बहुत कमी होती है. वुमेन दे वॉक लाइक टू वेरी फार प्लेसेस टू गेट वाटर, और वो पानी को बहुत ही सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं क्योंकि उनको पानी मिलता नहीं है.
इन सम हाउसेस स्टेप्स वेल्स वर बिल्ट टू कलेक्ट दी वाटर। कुछ घरों के अंदर स्टेप वेल बने होते थे। अब आपने वेल देखा है, वेल क्या होता है? कुआं है ना, उसमें बाल्टी डालते हैं रस्सी से और बाल्टी पानी खींचते हैं, पानी बाहर आ जाता है। कुछ घरों में स्टेप वेल्स बने होते थे, मतलब नीचे की तरफ जाके वेल बने होते थे और उनको आप उनके अंदर पैदल उतर के जा सकते थे। सीढ़ियां बनी होती थी, सीढ़ियों के रास्ते आप जा सकते थे और पानी लेके आ सकते थे। बेसिकली वो सारा रेन वाटर कलेक्ट करके रखते थे, तो उसको यूज करते थे। वुमेन फोक यूज टू गेट वाटर फ्रॉम दीज स्टेप वेल्स, और औरतें जो है सब एक साथ जो है वो पानी लेने जाती थी। स्टेप वेल्स आर अंडरग्राउंड वेल्स विच कैन बी रीच्ड बाय गोइंग डाउन ऑन दी स्टेप्स, लाइक आई टोल्ड यू। पीपल यूज टू कलेक्ट रेन वाटर इन दी स्टेप वेल्स। लोग क्या करते थे, इन स्टेप वेल्स में रेन वाटर कलेक्ट करके रखते थे। लुक एट दिस, दिस इज अ स्टेप वेल, ठीक है। ऐसे जाके यहाँ से पानी लेके आते थे, इसके अंदर रेन वाटर कलेक्ट होता था। बारिश हुई, इसमें पानी भर गया और फिर इसके पानी को यूज करते थे। सम हैड बिल्ड वाटर टैंक्स वेयर दे यूज टू वॉश क्लोथ्स एंड टेक देयर बाथ। और कुछ लोगों ने वाटर टैंक बना लिए होते थे जिसमें पानी कलेक्ट करते थे और वहां से पानी कपड़े धोने के लिए और नहाने के लिए यूज करते थे। बट टुडे द सीन हैज चेंज्ड। वी डो नॉट हैव टू गो एनीवेयर टू फेच वाटर, जस्ट टर्न द टैप एंड देयर इज वाटर। हाउ डज वाटर रीच आवर होम्स? लेट अस सी। पहले के जमाने में पीपल यूज टू गो टू डिफरेंट प्लेसेस एंड गेट वाटर फ्रॉम देयर, बट नाउ व्हाट हैपेंस, बिकॉज ऑफ द इनोवेशंस, बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजी, वी आर एबल टू गेट वाटर इन आवर होम्स थ्रू टैप। टैप ऑन करो और पानी आ जाता है। अब पानी कैसे आता है? Water is pumped from its source, mostly rivers or tanks, and is collected in a huge reservoir. पानी कहाँ से आता है? रिवर्स या टैंक्स में से आता है और पंप के थ्रू पंप करके खींच के उसको रिजर्वायर के अंदर टैंक्स में भर के रख लेते हैं। फ्रॉम हेयर वाटर अंडरगोज मेनी प्रोसेसेस विच मेक्स इट क्लीन। और यहाँ उसको बहुत सारे प्रोसेसेस के थ्रू क्लीन करा जाता है, उसमें क्लोरीन ऐड करते हैं एंड देन वी मेक इट फिट फॉर ड्रिंकिंग। दिस क्लीन ड्रिंकिंग वाटर इज सेंड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सिटी थ्रू ह्यूज पाइप्स। और इस पानी को डिफरेंट पार्ट्स ऑफ सिटीज में भेजा जाता है ह्यूज पाइप्स के थ्रू, जो जमीन के अंदर पाइप लगे होते हैं। स्मॉल पाइप्स आर कनेक्टेड टू दी होम्स टू गिव देम वाटर सप्लाई। वो पाइप्स हमारे घर के पाइप से कनेक्टेड होते हैं और हमको वहां से पानी मिलता है। मॉर्निंग में पानी आया, और आवर्स होते हैं पानी के कि सुबह 1-2 घंटा पानी आएगा, शाम को 2 घंटा पानी आएगा। इन सम विलेजेस पीपल स्टिल यूज वेल्स एंड हैंडपंप्स फॉर वाटर। कुछ गाँवों में आज भी लोग वेल्स और हैंडपंप्स को यूज करते हैं पानी लेने के लिए। Now, community service of water to serve water to pilgrims is a common sight. People serve water to people free of cost. They are called पियाऊस। अब पियाऊ लगे होते हैं, ठीक है। ऐसे लोगों ने बहुत जगह लोगों ने अपने घरों के दुकानों के बाहर मटकों में पानी भर के रखा होता है। दैट इज फॉर कम्युनिटी सर्विस। की गर्मी का टाइम चल रहा है तो लोग आके जो है वो वहां से पानी पी के जा सकते हैं, उनको पियाऊ बोलते हैं, ठीक है। और ऐसे ही हम बर्ड्स के लिए भी करते हैं। गर्मियों में क्या करते हैं, क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा होती है तो हम बर्ड्स के लिए एक मिट्टी के बर्तन में पानी भर के छत पे रख देते हैं या घर के बाहर रख देते हैं, सो दैट एनिमल्स एंड बर्ड्स दे कैन गेट वाटर फ्रॉम देयर। सो दैट इज कॉल्ड कम्युनिटी सर्विस, जब हम कम्युनिटी के लिए एज अ होल कुछ करते हैं। नाउ फ्लो ऑफ वाटर। वाटर फ्लोज डाउनवर्ड। पानी हमेशा ऊपर से नीचे आता है। इट इज अ नेचुरल फिनोमेना। ये एक नेचुरल फिनोमेना है, समथिंग विच नेचर हैज created. It is one of its property that it flows down slope without any force. और ये पानी की एक प्रॉपर्टी होती है कि बिना किसी फोर्स के वो अपने आप ऊपर से नीचे बहता हुआ आता है। तो जब आप झरने देखते हो और ऊपर ग्लेशियर्स में से पानी पिघलता है, पहाड़ों में से पानी पिघलता है, तो वो नीचे उतरता हुआ आता है और वो पानी नदियों में आके मिलता है और वहां से उस पानी को हम यूज करते हैं। बट सम टाइम वाटर फ्लोज फ्रॉम डाउनवर्ड टू अपवर्ड लेवल। अब तो हम बात करें कि नेचुरली क्या होता है, पानी ऊपर से नीचे आता है, ठीक है। पानी बहता है, बहता हुआ आता है, पानी हमेशा बहता है, उसकी प्रॉपर्टी है, इट फ्लोज। बट समटाइम व्हाट हैपेंस, पानी नीचे से ऊपर जाता है। वो कब होता है? वो हम मैन्युअली करते हैं। वी डू दैट मैन्युअली। हाउ? लुक एट द पिक्चर शोन बिलो। ये देखो, यहाँ पे ट्यूबवेल लगा हुआ है, राइट। ये ट्यूबवेल में मोटर लगी होती है और जो ग्राउंड वाटर है उसको वो ऊपर की तरफ खींचती है और पानी लेके आती है। ऐसे ही हैंडपंप है, ठीक है। इसको आप जोर जोर से चलाओगे तो जो नीचे का ग्राउंड वाटर है वो ऊपर चढ़ के आता है और यहाँ से पानी निकलता है। तो यहाँ पे जब हम मशीन को यूज करते हैं, विद द हेल्प ऑफ मशीन वी चेंज द travel position of water. Now from going upward to downward it starts coming upward from ऊपर आने लग जाता है। तो we use these machines to get the water from the ground. ग्राउंड से पानी जो आता है, ग्राउंड में पानी कैसे जाता है? जो बारिश का पानी होता है वो ग्राउंड में जाता है। Force is used to pull the water upward. In water wheels, the oxen or camels pull the lever attached to the water wheel, which is in turn starts rotating, pulling out the water. It used to happen long time back कि ऑक्सेस की हेल्प से जो है वो ऐसे पानी ऊपर खींचा जाता था।
अब नहीं होता है, हैंडपम्प्स एंड ट्यूबवेल्स हैं, उनको यूज करते हैं। ट्यूबवेल्स यूज इलेक्ट्रिक पावर टू पुल अप द वाटर। ट्यूबवेल्स क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक पावर के यूज करते हैं वाटर पुल करने के लिए। इन हैंडपम्प्स वी हैव टू प्रेस द पिस्टन डाउन टू क्रिएट अ प्रेशर। हैंडपम्प के अंदर एक पिस्टन लगा होता है, उससे प्रेशर, उसको चलाते हैं हम और प्रेशर से पानी जो है वो ऊपर आ जाता है। ऑल दीज मेथड्स आर ऑल्सो यूज टू इरीगेट द फील्ड्स। और ये ट्यूबवेल